गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पहले हमने 7 लेक्चर तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके थे, जो कि इसी लाइट का एक पहला पार्ट था। ओके क्लास, नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द लाइट यूनिट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके क्लास, सो इन दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, first we'll see what is mean by refraction of light. Suppose I will consider any transparent surface. Above the surface I will consider medium 1 and below the surface I will consider medium 2. Both the mediums are different. For example, I can take this is air and this one is a glass. Okay class, now I will draw a normal, right? Supposed to be any incident ray which falls obliquely. Obliquely, that means it makes some angle with the surface and with the normal. So this angle, as we know, angle of incident, and this ray is incident ray. Okay class, now what will happen when it travels from medium 1 to medium 2, right? As we have mentioned, this is air and this is glass, that means both are different. So it will not travel in a straight line, because in maybe in the 7th class you have learned a light travel in a straight line, right? But it is travel in a straight line only in one medium. But supposed to be a medium changes, so it will changes its direction, or it bends, or it deviates. Like this, now it is traveling in the medium 2, so it will bend. देखो, अगर मीडियम नहीं होता, यानी ये सरफेस नहीं होता, या ये मीडियम पूरा एक ही होता, तो लाइट ऐसे ट्रैवल करता, कुछ इस तरह से, राइट क्लास? बट अभी मीडियम है, तो लाइट क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है, जो रेड लाइन से मैंने मार्क किया है, राइट क्लास? इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो चीज आपको नोटिस करनी है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, फिर भी हम नोटिस कर लेंगे। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस रे को बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके क्लास, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल, इसको हम अभी पढ़े तो भी चलेगा, नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान रखना है ना? वैसे ये ड्रॉ करे तो भी ओके, नहीं ड्रॉ करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसे बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके क्लास, clear the meaning? So what is mean by refraction? When a light changes its direction or bends or deviate when it travel from medium 1 to medium 2 obliquely. We remember obliquely, है ना? So that process of the light called as refraction of light. That process of light called as refraction of light. Right class? So pause कर दीजिए स्क्रीन को और नोट डाउन कर लीजिए what is meant by refraction of light. Okay class? Now we will see how does it occur, or on what basis, or what are the cause it occur, that refraction of light occur. See, for that we need to consider beam of light. What do you mean by a beam of light? A bunch of rays like this.
again I will consider medium. In that medium 1 and this is medium 2. I can consider anyone, right? Suppose again I will draw one normal. After that I will draw the normal. First I will consider beam. Suppose this is a beam of light which falls on the surface. Okay class, right? In this region a lot of beams are there, but we will consider two ends of this beam, that is first end and the second end. I can mark the name also. This is AB and this one is a CD. This two rays study, that means all rays we can study it or we can consider it. Okay, so I will draw the normal from this point. Here one normal and here also one normal. Okay class, so as we know, when a light travels from one medium to another medium, it changes its direction, right? Or it bends, right? Or it deviates. So I will draw here like this, changes, and here also changes. Okay class, so what we have got, as we know that this is angle of incident, this is angle of incident, this is angle of refraction, and this is also angle of refraction. These are the incident rays and these are the refracted rays. If you observe carefully, and we will take a small concept of the geometry, right class? Suppose I will draw a normal to this ray from this point. This is normal, which makes 90 degree. ओके, अगर ध्यान से देखते हो ये पूरा बीम ऑब्लिकली आ रहा है इस सरफेस के ऊपर, और पूरे बीम का ये जो पोर्शन है, इन दोनों में जब मैं कंपेयर करूं, ये जो पोर्शन है जल्दी यानी पहले फॉल्स हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, और ये जो पोर्शन है यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन थोड़ा सा लेट इस सरफेस के ऊपर आ रहा है. समझ में आ रही बात? तो ये जो पोर्शन है लेट आने के कारण और ये जो पोर्शन पहले गिरने के कारण लाइट जो है वो बेंड हो रहा है. ठीक है ना? बेंड हो रहा है इन द सेंस ये पोर्शन का जो रफ्तार है यानी स्पीड पहले कम हो रही है, पहले कम से बेटर है, हम बोलेंगे चेंज हो रही है. जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है इस पोर्शन से कंपेयर में, क्योंकि मीडियम, ये मीडियम अभी ये पूरा का पूरा अभी भी मीडियम 1 में है, लेकिन ये मीडियम 2 में चला गया तो इसकी स्पीड में चेंजेस आ जाएगा. किसके कंपेयर में? इसके पहले. और जब ये एंटर करेगा तब इसके स्पीड में, यानी कि अगर स्पीड पूरे बीम का एक समान रहा तो स्ट्रेट आएगा, लेकिन स्पीड अगर चेंज हो गया पहले या बाद में तो वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा. सो वन ऑफ द मेजर रीजन व्हेन अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, right, the speed of the light goes to changes, when either it is increase or decrease. It depends on mediums, from which medium to which medium it travel, right? But changes, that means bending of light. Changes, that means changing the direction of light. Changes of speed means deviation of the direction of light. Clear point? Okay, so speed is a major factor which changes the direction of light. So in air, suppose I will consider this is air and this is glass. So in air we know the speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. But in glass it will changes, right?
It depends on the medium to medium, right class? Okay, so again if speed changes, so another parameter also changes. How? Might be in sound chapter you have learned one formula, that V is equals to lambda into F. V is speed, lambda is wavelength, and F means frequency. Okay class? So if speed changes, then wavelength also changes. Changes ka meaning speed increases, wavelength also increases. Speed decreases, wavelength also decreases. Okay class? So what about the frequency? Frequency के बारे में क्या सोचे? Frequency remain constant. Remain constant. एक फैक्टर है, यानी कि कैसे समझाता हूं, मान लो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया या वाटर लिया, है ना, और वाटर से मान लो एक कलर वाला लाइट, जैसे क्या बोल सकते हो उसको, लेजर लाइट, रेड कलर का। जब हम कोई वाटर से हम ट्रांसपेरेंट यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम से यानी वाटर से जब वो ट्रांसफर होता है, तो रेड कलर क्या दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाता है या रेड ही रहता है? हमेशा रेड ही रहता है। दैट कलर रिप्रेजेंट व्हाट? इट डज नॉट चेंजेस इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहेगा? फ्रीक्वेंसी। ओके क्लास? सो क्या अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? स्पीड। और कौन होगा? वेवलेंथ। और कौन रिमेन कांस्टेंट होगा? फ्रीक्वेंसी। ओके क्लास? सो यू कैन नोट इट डाउन। एक मार्क के लिए कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, राइट? समझ में आया कि किस तरह से लाइट बेंड होता है, किस तरह से चेंजेस होता है, या उसी को बोलते हैं हम डेविएट होता है। ओके क्लास? सो दिस इज द मेजर फैक्टर behind the changing direction of light. Okay class? Now the mediums, है ना, as we mentioned about the medium 1, medium 2, air medium, glass medium. Let's see what are the technical names of that medium, right? Generally that we will mention, है ना, in this chapter. So in that two kind of the medium that we will mention, that is rarer medium and denser medium. Rarer medium is what? Where the density of the particles are less. Density of particle are less. Density, you know that? What does it mean by density? Mass by volume. Okay. Here also, where the light changes its direction very less, that medium called as rarer medium. For example, I will say, suppose air, glass, better water and glass. If you compare the three mediums, air, water and glass, सबसे डेंसिटी कम किसकी होगी? एयर, उसके बाद वाटर, उसके बाद ग्लास।
सो डेंसिटी सबसे ज्यादा, सबसे कम जिसकी है, उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम। क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम। आ रही बात समझ में? हियर दिस इज रेयरर मीडियम। इफ आई विल कंपेयर दिस विथ वाटर एंड ग्लास, ओके, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, राइट क्लास? नेक्स्ट, what is mean by denser medium? So denser medium is what? Density is high and light changes its direction less or more, right class? So that means called as denser medium. इसी मीडियम को हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल इसी में से हम लेते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, ग्लास। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? ग्लास की। और सबसे ज्यादा बेंड कहां पे होगा? ग्लास में। तो ग्लास इज व्हाट? डेंसर मीडियम। ग्लास इज व्हाट? डेंसर मीडियम, राइट क्लास? मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, ये कंप्लीटली कंपेयर डिपेंड होगा कंपैरिजन पे, है ना? जनरली हम दो मीडियम लेते हैं साथ में, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल मैंने ये लिए, जैसे कि समझाता हूं, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा आप लोगों को। चलो, मान लेते लाइट, है ना? लाइट ट्रैवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली, ये इंसिडेंट रे हो गई, है ना? ये मान लेते एयर, और यहां पे मान लेते हैं वाटर। अभी ये दो मीडियम में कंपेयर कर रहा हूं, अभी दो मीडियम में रेयरर कौन सा होना चाहिए? एयर। और ये क्या हो जाएगा? एयर के कंपेयर में ये क्या हो जाएगा? डेंसर, क्योंकि एयर के कंपेयर में इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना? तो लाइट बेंड होगा, बिल्कुल बेंड होगा, राइट क्लास? सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके? हियर this is rarer medium, that means air, and water is a denser medium, okay class? When I will compare these two mediums, suppose I will take another medium, okay class? Another medium in the sense, here I will consider water and here I will consider glass. If you compare these two medium, same process, this is incident ray, so एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करेगा तो चेंजेस होगा, डायरेक्शन बिल्कुल चेंजेस होगा, जिस तरह से, है ना? सो कंपेयर करते हैं, अभी वाटर और ग्लास में रेयरर कौन होना चाहिए? वाटर। So this is rarer medium and glass is a denser medium. कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए सर, यहाँ पे डेंसर, वाटर एज अ डेंसर हो गया और यहाँ पे वाटर एज अ रेयर। मैंने पहले ही बोला कि कंपैरिजन होगा दो मीडियम के बीच में, है ना? जैसे कि यहाँ पे अगर देखता हूं मैं, एयर से डेंसिटी वाटर की ज्यादा होती है, इसलिए इसको डेंसर बोला गया। लेकिन यहाँ पे कंपेयर करता हूं तो वाटर की डेंसिटी ग्लास से कम होती है, इसलिए इसको रेयरर बोला गया। जब कंपैरिजन आएगा तब, है ना, रेयरर और डेंसर बदल भी सकता है, इसलिए एक मीडियम हमेशा डेंसर ही हो और रेयरर ही हो ये मानना नहीं है, ये डिपेंड करेगा, है ना, कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है या जा रहा है, ठीक है?
राइट, उसके हिसाब से इनका डेंसर और रेयरर में डिवीजन हो सकता है, ठीक है ना, राइट। सो दिस आर द बेसिक मीनिंग ऑफ मीडियम्स, राइट। सो आई होप यू हैव got the meaning of rarer medium and the denser medium. What does it mean? Okay class, now again we will see in that the light changes its direction. So there are two confusions or questions, either it is changes or bend toward the normal or move away from the normal, right. So we remember it entirely depend on light travel from which medium to which medium, right class, that means कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है लाइट, इस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल लूं मैं, फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि रेयरर मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर में, वही एयर मान लेते हैं, और यहाँ पे हम डेंसर मान लेते हैं, चलो वाटर मान लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एनी इंसिडेंट रे दिखा देते हैं, एक नॉर्मल है ना, सपोज दिस इज योर इंसिडेंट रे, योर इंसिडेंट रे, सो इट विल चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ध्यान रखना, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में ट्रैवल करेगा, दैट लाइट्स विल बेंड toward the normal, light will bend toward the normal, normal की तरफ bend होगा, समझ में आ रही बात है, राइट। देखो थोड़ा सा bend हुआ दिख रहा है इधर, ये सीधा ट्रैवल नहीं कर रहा है, अगर होता तो ये सीधा ट्रैवल करता ना इस तरह से, अगर मीडियम नहीं होता तो, लेकिन मीडियम है इसलिए बेंड हो रहा है। बट किधर, ये रेयरर से डेंसर जाएगा लाइट, ये आपको नोट डाउन करना है सभी चीजें। When the light is travel from rarer medium to the denser medium, it will bends toward the normal, bends toward the normal. This is one condition or one situation. Suppose I will take a reverse situation. Reverse means denser to rarer, like this. Supposed to be a, I will consider here denser. Any example we can take, suppose glass, and here rarer. This is I would consider water. Water or air consider करो, कोई चल रहा है। One normal here. One light is fall obliquely on the surface, right class. So now it travel from denser to rarer, don't get confused, now it travel from denser to rarer. So be remember, it will move away from the normal, it will move away from the normal, away from the normal. So these are the two major things that we need to remember. Whenever the light travel from rarer to denser, it will bends toward the normal, and whenever the light travel from denser to rarer, it will move away from the normal. Okay class, right? So these things you have to note down, right? Okay. Now what will happen when light does not fall obliquely? It will fall normally, yeah, along with the normal. How? We will see. Supposed to be a, you can mention a title. What will happen when the light fall
normally. What will happen when the light fall? Normal, like this. This is normal here. Now the light is fall normal. I will show with the beam, so you will get some more clarity. This is beam, incident. This is obliquely, not obliquely. It is normally. Okay, so it will not change its direction. This is medium 1 as usual. This is medium 2. I can say now rarer, and this is denser. Very good. Okay, so it will travel in a straight line. Yes, the velocity of the light will changes, but all beam part falls normally and all together. एक साथ गिर रहा है, तो एक साथ रफ्तार चेंज होगा, तो कोई डायरेक्शन में चेंजेस नहीं होगा, तो रिफ्रैक्शन आपको दिखाई नहीं देगा. समझ में आ रही बात? There will be no refraction of the light. The light will travel in a straight line. There will be no changes in the direction of light. There will be no deviation of the light, or there will be no bending of light. That we call is when a light falls normal. That's why in the definition also I have mentioned, right, obliquely, right? Then only the refraction will occur. Otherwise the refraction will not occur. So this is also one of the concepts that we need to remember. Okay, class. Now we will see the effect of refraction. We will see the effects of refraction. These are the basically illustration which very easy to understand. What are the effects in our daily life we are observing, we are noticing, right? So effects of refraction. Okay, class. Now first effect, if you see, supposed to be any glass like this, yeah, container. In that container I have placed one cube. Okay, one cube. This container is vacant right now, खाली है, empty container. If you observe this cube, observe, so position of the cube, यानी जहां पे पोजीशन है, यानी जहां पे बेस पे रखा है वहां पे आपको दिखेगा, बराबर. लेकिन मान लो यही क्यूब मैंने वाटर के अंदर रख दिया. अभी यही मैंने वेसल फिल कर दिया विद द वाटर एंड सेम क्यूब रख दिया, और वो क्यूब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं. क्या चेंजेस दिखेगा? हाँ, बिल्कुल दिखेगा. वो किस टाइप का चेंजेस दिखेगा, वो इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना. कैसे? देखो, अगर बराबर और सही तरीके से देखते हो, इस क्यूब को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, यानी यहां से रे निकल रही है. कहां से? क्यूब से. और क्यूब से रे निकल के आपके आंखों की तरफ जा रहे हैं, यानी कुछ इस तरह से. मान लेते हैं इस क्यूब का छोटा सा पॉइंट स्टडी कर लेते हैं, है ना. जैसा पॉइंट होगा वैसे पूरा क्यूब भी होगा. चलो यहां से एक रे निकली, मान लेते इस तरह से रे निकली. अभी ये रे में ये वाटर मीडियम है, अभी वाटर से ये किधर ट्रेवल कर रही है? वाटर के बाहर कौन सा मीडियम है? एयर, है ना. तो ये बेंड होगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ही होगा ना. समझ में आ रही बात? ये क्यूब को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, यानी क्यूब की रे पानी से ट्रेवल होते हुए एयर में ट्रेवल कर रही है ना. तो when light travel from denser to rarer, it bends toward the normal or away from the normal? Away from the normal. देखो अवे जाना है. सारी बात समझ में. तो जब ये अवे आएगा
है ना। अगर मैंने इस चीज का पीछे की तरफ रिफ्लेक्शन ले लिया इस तरफ से, कुछ इस तरफ से, तो भाई ये जो पॉइंट था ये वाला, ये पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है कहीं यहां पे। तो क्यूब आपका क्यूब भी शिफ्ट हो रहा है इस तरह से। इसलिए जब कोई आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, कोई ग्लास, उसमें पानी फिल कर लेना, ट्रांसपेरेंट लेना, थोड़ा सा फील आ जाएगा, और वहां पे कॉइन डाल देना, आपको ये फील होगा कि कॉइन ऊपर उठी हुई है, हाँ, बेस से थोड़ा हाइट पे उठी है, पानी फिल किए हुए ग्लास में, ठीक है। वैसे ही कुछ सिचुएशन होता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी को बोला जाता है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। राइट क्लास? कभी आपने लेमन जूस जहाँ पे मिलता है ना, वहां पे आप देखा होंगे जब ग्लास में पानी होता है, उस पानी में लेमन्स होते हैं डाले हुए, ऐसे लगता है वो लेमन्स आपको साइज बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, है ना। कभी देखोगे आप तो आपको फील आएगा। दैट इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक इफेक्ट बता दो, जैसे हम पानी में कोई लकड़ी डालते तालाब में वगैरह, तो जो लकड़ी गई है इंसर्ट हुई, वो ऐसे लगता है जैसे कि बेंड हो गई है ना, बेंड हुए समान लगती है। वही उसी वो भी एक इफेक्ट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो भी एक इफेक्ट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके क्लास? Now we will see very important point, that is laws of refraction. That is laws of refraction. Now we'll see the laws of refraction. Here are also two laws of refraction that we need to remember. Okay, first law, just like the laws of reflection, जो रिफ्लेक्शन का लॉ था वही वैसे ही फर्स्ट लॉ है। कैसे? याद करो रिफ्लेक्शन का लॉस क्या था? मान लेते है ना, एक नॉर्मल, एक इंसिडेंट रे, सही है, और ये रिफ्रैक्टेड रे। ओके क्लास? सो क्या बोलेंगे? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। यानी कि पूरा बोर्ड क्या मानेंगे हम? प्लेन सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर पूरे के पूरे रे आ रही है। देखो ये एक रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन है, नॉट अ रे। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। यानी कोई भी रे बोर्ड के अंदर जा रही है क्या? नहीं। बोर्ड के बाहर आ रही है क्या? नहीं। पूरे के पूरे बोर्ड पे ही अवेलेबल है ना, या अरेंज हो रही है। तो इसी लॉ को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से बता रहा हूं, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन, लाई इन अ सेम प्लेन। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ we'll see the second law. Second law, what does it mean? Second law, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction. Sine is a trigonometric function. These are the trigonometric function, है ना? So sine angle of incident to the sine of angle of refraction is equals to constant.
is equals to constant. Do you remember second law? It is the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is equals to constant. Is equals to constant. इसी कांस्टेंट को और एक नाम दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसी कांस्टेंट को और एक नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू. MEW म्यू. ठीक है, कई बुक में आपको एन से भी रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह से. इट्स योर चॉइस. ओके क्लास. सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट लॉ क्या था? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in a same plane. Second law, the sine of angle of incident, the ratio of the sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is equals to constant. Is equals to constant. That constant also called as refractive index. Refractive index. इस refractive index के ऊपर हम चर्चा करेंगे, पूरा क्लास लेंगे इसके ऊपर, है ना. अभी यहां तक हम रुक जाते हैं. राइट. जो भी चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आई हो वो कमेंट में आप पूछ सकते हो. लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को. राइट क्लास. ओके, थैंक यू.